वेलकम टू द शो। मैरिजेस की बात हो रही थी, ठीक? पहली मैरिज 1950s में अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान। डिवोर्स कैसे हुई? आपने बता दिया कि मैरिज कैसे हुई। The divorce happened in 1965 जी when India and Pakistan went to war, जी and both countries were using U.S. supplied equipment. जी And the United States took the position that it had not supplied this equipment for these two countries to fight each other, जी and cut off supply to both countries. जी An action that had very little Impact. significant for India Yeah. and huge significance for फॉर Pakistan. पाकिस्तान। अच्छा, उसमें पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल ये है कि जनाब हम तो आपके दोस्त हैं, और फिर हम ना सिर्फ दोस्त हैं बल्कि हमने आपसे मुआहदात किए हुए हैं, हमने आपसे सीटों किया हुआ है, हमने आपके साथ सेंटर किया हुआ है। और ये दो मुआहदात जिस वक्त किए गए थे तो उसमें उस वक्त आपने कहा था कि बिल्कुल हम आपको वेपनरी दे रहे हैं, हम आपको आर्म्ड कर रहे हैं, और आप जो है आपके हम दोस्त हैं, आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो एक दोस्त के साथ जिस वक्त डिवोर्स की जाती है तो फिर ये बात क्यों की जाती है कि जनाब आप इंडिया के ख़िलाफ़ ये यूज़ नहीं कर सकते? Pakistan understood perfectly well that these alliances were crafted against the Soviet Union. Right. But they hoped जी that they would also extend to all of Pakistan's external true. security Yeah, threats. yeah. And the United States understood that Pakistan's real worry was India, जी but felt that it had not agreed to get the U.S. into a confrontation with India. Yeah. And so it hoped that Pakistan would stay Hope. with the purposes for Yeah, the yeah. alliance. And I would guess that both sides avoided talking too much about this because it was an unpleasant subject. राइट, एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। आगे चलते हैं। अब मामला आता है 1970s का। 1970s में जो है थोड़ी सी जिस वक्त वो चाइना जाने का मामला था, जी अमेरिका और पाकिस्तान की खासी कोलैबोरेशन वगैरह होती है जी। लेकिन मैंने समझता कि उस स्टेज के ऊपर किसी किस्म की मैरिज हुई। उसके बाद 80s का मामला आया। Marriage जो है वो कोई 79 अफेयर हुआ, 79 मैरिज नहीं हुई, अफेयर हुआ। अफेयर हुआ। ओके, लेकिन मैरिज दूसरी शादी 80s में 79 79 जी 79 80 जी 81 जी जी। अच्छा, तो उसमें मैं वही प्रपोजल की बात आपसे पूछता हूँ कि किसने प्रपोज की और मैरिज? the proposal, I would say, again came from the United States, but it's more ambiguous. जी I was actually in Washington in January of 1980. The invasion took place on Christmas Day, Quaid-e-Azam's birthday of 1979. जी अच्छा। So I remember और my- आप यहाँ पे वाशिंगटन में थी मैं वाशिंगटन में थी 1979 और में? 9 जनवरी को हाँ, आगा शाही साहब हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे आगा शाही। जी हाँ जी हाँ। वो वाशिंगटन आए अच्छा to talk about the implications of the Soviet invasion of Afghanistan. जी, उनके साथ एक जनरल भी थे, पता नहीं मेरे ज़हन से निकल, जनरल Oh, आरिफ? I'm sure he had जनरल it. आरिफ जी। Well, I think General Arif was there, and I know जी that Sahibzada Yaqub Khan was there, अच्छा, even वो भी though थे he उनके was साथ। ambassador in Moscow. जी 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 जी। But he was there. अच्छा अच्छा He was there as the historical memory and also as the most elegant and articulate man Now you're for referring miles to around. Aga Shahi Sahib. No, I'm talking about Sahabzada Yaqub. Sahibzada Yaqub Khan was there too. He spoke 7 languages. I know that. I know that. जी अच्छा But to get from the proposal to the marriage took 2 years. जी And that was because, in the view of General Ziaul Haq, the United States was not proposing a sufficiently large dowry. पीनट्स की बात हुई, उन्होंने Right. उसको Now, लक़ब दिया कि I आप have हमें always wondered whether he chose the term peanuts knowing that I Jimmy see. Carter was a peanut farmer or not. right I now believe yeah he did not he did not, but think he that. did It use was a uniquely insulting way Absolutely, of talking yeah. to President but Carter. he did say that. He I did mean, say used- that. yeah, yeah. But I think he thought he was just using American slang. जी 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 जी। But लेकिन उसने हेडलाइंस कैप्चर की पूरी दुनिया में। that's right. क्रिटिक्स इसके बारे में कहते हैं कि ठीक है जिस तरह से उसने निगोशिएट किया, अच्छी डील ले ली, और ये दुरुस्त था जिस तरह आपने फरमाया कि जनरल ज़िया ये चाहता था कि जब तक रिपब्लिकन पावर में नहीं आते जी, और उस वक्त यकीनन रेगन की हवा चल रही थी
कि जिस वक्त ये पावर में आ जाएंगे हमें पता है कि रिपब्लिकन से अच्छे ताल्लुकात होते हैं, हम इनसे गुफ्तगू कर सकेंगे और अच्छी डील ले सकेंगे, क्योंकि रिपब्लिकन और ख़ास तौर पे रोनाल्ड रेगन जो थे वो गंग हू थे सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जी। तो उस तनाजुर में पाकिस्तान में ये कहा जाता है और क्रिटिक्स ये कहते हैं कि डील तो अच्छी हुई, लेकिन ये डील जो थी फ़ौजी जर्नैलों के लिए अच्छी थी, क्योंकि अपनी हुकूमत को वो लेजिटिमाइज़ करना चाह रहा था। उसके ऊपर न्यूक्लियर, पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के हवाले से उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा था, और उसकी अपना इस्तेहकाम, अपनी सॉलिडारिटी, अपनी हुकूमत को मुस्तहकम करने के लिए भी उसने ये फ़ैसला किया। लेकिन ये जो डिवोर्स हुई है जी, डिवोर्स किस वजह से हुई फिर? ये दोबारा ये 80s की बात है। The divorce came about purely because of the nuclear program. Nuclear program, yeah. Because it had reached the point where the president was unable to make the certifications that were required by the Pressler Amendment because the program had gone too far. अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, और बिल्कुल मैं एक पाकिस्तानी अवाम का चेहरा आपको दिखाना चाहता हूँ, उनकी आवाज़ दिखाना चाहता हूँ। पाकिस्तानी अवाम ये कहते हैं कि जनाब, जिस दौरान में हम खून बहा रहे थे, हम काम कर रहे थे अफ़गानिस्तान में आपके साथ मिल के जी, उस वक्त आपने जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसके बारे में थोड़ा सा चेहरा इधर कर लिया। आपने कहा कि ठीक है, हम इसके बारे में आपको प्रॉब्लम नहीं देंगे जी। अब अफ़गानिस्तान में जो कोई भी जंग होती है उसकी वजह से जो पाकिस्तान का नुकसान है पूरी दुनिया को पता है। शुरू में हमने जिस तरह से थोड़ी सी बात की, उसे पता चला पाकिस्तान ठीक है, जो कुछ भी था गरीब मुल्क था, लेकिन पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज़म इस हाई लेवल का नहीं था, रेडिकलाइजेशन नहीं थी। पाकिस्तान में जो था वो जो कल्चर ड्रग का और वायलेंस का नहीं था। पाकिस्तान में जो है इतनी ज़िंदगी ज़ाया नहीं हुई वगैरह वगैरह। तो एक लंबी लिस्ट है जो बीमारियां इस वक्त हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, वो सोवियत यूनियन की इन्वेजन की वजह से और हमारी इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुई अफ़गानिस्तान में। तो क्या उस वक्त अमेरिकन्स के और एक और बात ये की जाती है कि जनाब अमेरिकन्स उस वक्त हमें छोड़ के फौरी तौर पर निकल गया और उसके बाद दोबारा लौटे नहीं, हमें देखा नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि डिवोर्स का जो नुकसान था आपकी नज़र में ये बहुत बड़ा नुकसान था। आप समझती हैं कि अमेरिकन्स को उस वक्त किसी ना किसी नाते से इन्वॉल्व रहना चाहिए था? Well, let me go back a little bit because I would like to argue with at least some of your analyses of the source of the Bimarian during this period when the United States and Pakistan were so deeply involved in trying to get the Soviet Union out of Afghanistan. I said it was not a love match, and there are a lot of people who said that General Zia entered into this relationship reluctantly. I'm not sure how reluctant it was. I think he saw an opportunity to make Pakistan the most influential power in Afghanistan. And that this was a strategic possibility for him. अच्छा, ये बहुत बड़ी बात आपने की, बहुत बड़ी बात की है। मैं इसे रीकैप करना चाह रहा हूँ अपने ऑडियंस के लिए कि उस वक्त अमेरिकन पर्सपेक्टिव ये था कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान को जो है एक अहम मुल्क के तौर पे पाकिस्तान की मदद की जाए और एक मेजर प्लेयर बनाया जाए अफ़गानिस्तान में। मैं दुरुस्त तर्जुमा कर सका हूँ? That's right. Yes. No, that is what I said. That is what I meant to say. Okay. It is my perception that the main doubts about entering into a big relationship with the United States actually came from the civilian side. Agha Shahi had worked at the UN for a long time, had struggled very hard to get Pakistan into the non-aligned movement, and saw this as a relationship that could mess up that enterprise. So, you know, when you divide things like this, it always sounds much more tidy than it really is. True. But I think that the relationship with the U.S. was, from Zia's perspective, an important opportunity. Now, did big damage come from the divorce? I would say yes, but not always in the ways you would expect. It certainly interrupted the engagement between the two armies. Now, I do not believe that having the two armies continue to be closely intertwined was going to make everybody love everybody. I think that is much too simplistic. True.
true. But there's a whole network of professional relationships जी. that American military officers like to have with Pakistani military officers and other countries too, but we're जी, talking here जी, about जी, Pakistan. जी, And those had a 10-year interruption. जी. That's a long time. इट्स ए लॉन्ग टाइम। और आपने आगा शाही का जिक्र किया, 2-3 दफ़ा आपने आगा शाही का जिक्र किया, और आगा शाही के हवाले से ये कहा जाता है कि आगा शाही खासे रिलक्टेंट थे इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए। जो शादी थी उन्होंने समझा कि मुझे भी बाराती बना के वेडिंग में मुझे भी वेडिंग में शामिल किया गया है, लेकिन ये है कि सिर्फ मेरा चेहरा इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि आगा शाही एक बहुत बड़ी शख्सियत है। और जनरल, बल्कि उनका कहना ये था, उनका तासुर ये था कि जनरल ज़िया ने उनको यूज़ किया है कि उनका आगा शाही का पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो 9 लाइन मूवमेंट की तरफ ज़्यादा बनता था। ये दुरुस्त एनालिसिस है आपके ख्याल में जो मैं कह रहा हूँ? Yeah, I think so. जी हाँ, I think so. अच्छा। But the bigger, the other consequence of the Pakistan-U.S. breakup, जी ironically, जी was that it meant, I mean, the United States, as you know, has many laws that involve sanctions. जी, It turns out that you can only impose sanctions once, ट्रू। because then it's done. You have nothing else you can do. And this आखिरी हरबा होता है। this was something that the United States had to deal with जी afterwards. जी जी जी। तीसरी मैरिज और डिवोर्स की तरफ आते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पे लेते हैं। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं।